انسانی تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جو ہمیں صرف ایک کہانی لگتے ہیں، مگر ان میں گہری تعلیم اور نصیحت چھپی ہوتی ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے پر نظر ڈالیں گے جو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک عظیم جنگ کی تصویر ہے۔ یہ واقعہ ہے نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ نمرود ایک ایسے شخص کا نام ہے جو نہ صرف اپنی شخصیت میں تکبر اور گھمنڈ کی مثال تھا بلکہ اپنی حکومت میں بھی ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ اس کی حکومت کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا تسلیم کرواتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اس کی ظالم حکومت میں انسانی حقوق کا کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو نہ صرف خود گمراہ تھا بلکہ اپنی قوم کو بھی گمراہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اس غم اور ظلم کے اندھیروں میں اللہ نے ایک روشنی بھیجی، اور وہ روشنی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم اللہ کے عظیم پیغمبر تھے جنہوں نے شرک اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کا مشن تھا اللہ کی وحدانیت کو دنیا میں عام کرنا اور انسانیت کو گمراہی سے نجات دلانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی قوم کو سچائی کا پیغام دیا بلکہ نمرود جیسے تکبر اور گھمنڈ کے معتبر حکمران کے سامنے بھی حق کا پرچم بلند کیا۔ یہ صرف ایک معمولی مقابلہ نہیں تھا بلکہ ایمان اور کفر کی جنگ تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے ظالم اور جابر حکمران کے دور میں ایک لڑکی جو اسی کا خون تھی کیسے اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی؟ آخر وہ کون سا پیغام تھا جو نمرود کی بیٹی کے دل میں اتر گیا اور اس نے اپنے باپ کا انکار کر دیا؟ کیا وجہ تھی کہ وہ شرک کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف چلی گئی؟ آئیے اس واقعے کے گہرے پہلوؤں پر غور کریں اور سیکھیں کہ کس طرح اللہ کا پیغام سب سے مضبوط ہوتا ہے، چاہے سامنے کتنا ہی بڑا ظالم کیوں نہ ہو۔ نمرود ایک ایسے حکمران کا نام ہے جو اپنے تکبر اور گمراہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نہ صرف زمین کا حکمران ہے بلکہ لوگوں کی زندگی اور موت پر بھی اس کا اختیار ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خدا قرار دیا اور اپنی قوم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ نمرود کا متکبر رویہ اور لوگوں پر اس کا زبردستی کا اختیار انسانی حقوق کے ہر اصول کے خلاف تھا۔ اس نے اپنی قوم کو شرک اور کفر کے دلدل میں دھکیل دیا، جہاں ہر شخص اس کے سامنے جھکتا اور اس کے حکم کا پابند ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم حکمران کے سامنے حق کا پرچم اٹھایا۔ اللہ کے پیغمبر ہونے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا اور شرک کی مخالفت کی۔ انہوں نے نمرود کو سمجھایا کہ صرف اللہ ہی وہ ہے جو انسانی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ان کا پیغام صرف وہ نمرود کے خلاف نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پورے نظام کے خلاف تھا جو ظلم اور کفر پر مبنی تھا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک اہم مکالمہ ہوا جو تاریخ میں یقین اور گمراہی کے درمیان ایک مثالی ٹکراؤ کے طور پر یاد رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اس بات کا جواب اپنے گھمنڈ کے ساتھ دیا اور کہا، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ اس نے دو قیدی بلائے، ایک کو رہائی دے دی اور دوسرے کو قتل کر دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال۔ نمرود اس دلیل کا جواب دینے سے قاصر رہا۔ نمرود کی گمراہی اور تکبر اتنا بڑھ گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو رد کر دیا۔ اس نے اپنے آپ کو مضبوط اور لازوال سمجھا اور اللہ کی قدرت کا انکار کیا۔ اس کی یہ سوچ تھی کہ وہ اپنے تکبر اور ذاتی شان کے ذریعے سب کچھ کر سکتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام اور اللہ کی مدد اس کے تکبر اور کفر پر غالب آئی۔ آخرکار نمرود کا انجام اس کے ظلم اور گمراہی کی ایک مثال بن گیا۔ نمرود کے ظلم اور تکبر کے سائے میں اس کی اپنی بیٹی کا ایک الگ رخ اپنانا اتہاس کا ایسا پہلو ہے
जो हर दौर के इंसान के लिए सबक है। नमरूद की बेटी एक राजा के महल में पली बढ़ी थी, जहाँ हर चीज की फरावानी थी और उसका बाप खुद को खुदा करार देता था। उस महल में कुफ्र का बोलबाला था और तौहीद का नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था। लेकिन उसी महल में एक रूहानी रोशनी ने जन्म लिया जो उसके दिल को बदलने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम तौहीद की गुफ्तगू जब नमरूद के महल तक पहुंची तो नमरूद की बेटी भी उन बातों से बेअसर नहीं रही। उसने ये सुना कि हजरत इब्राहिम एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देते हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है। वह एक अल्लाह जो इंसानी जिंदगी और मौत का इख्तियार रखता है और जो दुनिया का असल मालिक है। नमरूद की बेटी ने पहली बार इन बातों पर गौर करना शुरू किया। वह सोचने लगी कि अगर हजरत इब्राहिम सच कह रहे हैं तो उसके बाप का दावा गुमराही के सिवा कुछ नहीं। हजरत इब्राहिम के अखलाक और उनकी दलीलें नमरूद की बेटी के दिल पर गहरा असर छोड़ गई। वह देखती थी कि कैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मिशन के लिए हर मुश्किल का सामना किया और कैसे वह अल्लाह के साथ अपने तल्लुक में मजबूत रहे। उसका दिल इस सच्चाई और रोशनी को तस्लीम करने लगा। एक रात उसने तस्लीम किया कि नमरूद का दावा झूठ और फर्जी है और असल इबादत सिर्फ अल्लाह की है। नमरूद की बेटी का यह ईमान का सफर आसान नहीं था। उसने अपने अंदर एक गहरा जज्बा महसूस किया जो उसे अल्लाह की तरफ खींच रहा था, मगर इसके साथ साथ वह यह भी जानती थी कि अगर उसके बाप को इस बात का इल्म हुआ तो वह उस पर सख्त अज़ाब नाजिल कर देगा। इसके बावजूद उसने अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला किया। वह रोजाना छुपकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें सुनती और अल्लाह की तरफ रुझान करती। एक दिन जब उसने अल्लाह की इबादत का ऐलान अपने दिल से किया तो उसका यह फैसला एक इनकलाबी काम बन गया। उसने अपने बाप के तकब्बुर और जालिम हुकूमत को रद्द कर दिया। उसने अल्लाह के पैगाम को अपनाया और शिर्क को छोड़ दिया। ये फैसला उसके लिए एक आजमाइश बन गया, मगर उसका जज्बा ए ईमान इतना मजबूत था कि उसने किसी भी मुश्किल का सामना करने का इरादा कर लिया। जब नमरूद को इस बात का पता चला कि उसकी अपनी बेटी अल्लाह की इबादत कर रही है और उसके खिलाफ हो गई है तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की कि वह अपने रुख से बाज आ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया। उसका यह इनकार उसके बाप के तकब्बुर के लिए एक खुला चैलेंज था। नमरूद ने अपनी बेटी पर सख्तियां शुरू कर दी, मगर वह अपने इरादे पर कायम रही। ये वाकया हमें ये समझाता है कि असल रोशनी और सच्चाई कितनी ताकतवर होती है, जो सबसे बड़े जालिम को भी चुनौती दे सकती है। नमरूद की बेटी का यह ईमान का सफर हर उस शख्स के लिए मिसाल है जो मुश्किलात के बावजूद सच्चाई और तौहीद के रास्ते पर चलना चाहता है। नमरूद की बेटी जो अल्लाह और उसके नबी की मोहब्बत में झुकी हुई थी, उसके दिल में एक यकीन था जो इस दुनिया जहान से आगे था। उसका ईमान बहुत मजबूत हो चुका था, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई फायदा छुपा नहीं था और न ही उसका विश्वास किसी दुनिया के तमाशा और खजानों से जुड़ा था। नमरूद की बेटी हर कठिन से कठिन मुश्किल में भी अल्लाह को याद रखती थी। एक दिन नमरूद ने अपनी बेटी से सवाल किया, क्या तुम्हारे अल्लाह की दुनिया इस दुनिया की तस्वीर से बढ़कर है जो तुम्हारे दिल को सलाम करती है? नमरूद की बेटी के सामने सारी दुनिया थी, जहाँ मुश्किलात और नफरत भरी हुई थी, जहाँ जुल्म का दरिया था और जहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान था। लेकिन उसने सवाल का जवाब दिया, नमरूद, तुम्हारे जहाँ में हर सुबह मुश्किल है, हर दिन जुल्म है और हर शाम इंसान के ईमान को तोड़ने की कोशिश है, लेकिन मेरे दिल में उस अल्लाह का रास्ता है जो सब कुछ है। मेरा ईमान इतना मजबूत है कि अगर मेरे सामने कोई बहलाने वाली बात भी की जाए तब भी मेरा ईमान नहीं डगमगाएगा और मेरा नाम हर जमाने में सम्मान के साथ लिया जाएगा। तुम्हारी दुनिया की जुल्म के बावजूद मेरा ईमान सलामत रहेगा। नमरूद, जिसे हर इंसान के ईमान टूटने का इंतजार था, उसकी बेटी का जवाब सुनकर चुप हो गया। जब उसकी बेटी ने अपने ईमान को नहीं तोड़ा, हर दिन, हर सजा में और हर हुकूमत में उसका ईमान बढ़ता गया। एक दिन नमरूद ने अपनी बेटी को एक बाप के रूप में तलाशा। शायद एक बेटी अपने बाप के खौफ में अपना ईमान तोड़ दे,
उसने सोचा था कि आखिर एक दिन आएगा जब दुनिया का हर इंसान उसके सामने सिर झुकेगा, लेकिन उसकी अपनी बेटी की सोच के समंदर में हर सोच का जवाब अल्लाह और उसके नबी के हक में था। उसने कहा, मुझ में डर और दुनिया नहीं, मुझ में वही है जो मेरी माँ ने मुझे दिया, एक ईमान जो हमेशा रहेगा। नमरूद के कुफ्र का अंत, उसके जुल्म की बेइनकारियत और उसके जुल्म का असर नहीं हुआ। उसकी हुकूमत एक सफर था जो खत्म नहीं होता, लेकिन उसकी बेटी का ईमान उसके कुफ्र पर हावी हो गया। नमरूद की बेटी एक लम्हा बेमिसाल और सहमी हुई शख्सियत थी, जिसका ईमान बहुत बुलंद था। उसने हर जुल्म के बावजूद अल्लाह का नाम और ईमान अपने दिल में बुलंद किया। नमरूद की बेटी पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, जो कहते हैं कि ईमान एक आसमानी रिश्ता है और हर फितना एक दिन खत्म होगा, लेकिन उस वक्त तक उसका असर रहेगा। नमरूद की बेटी ने सब्र और सुकून के साथ अपना हिदायत का रास्ता अपनाया और दुनिया को समझा दिया कि हर पैगाम, हर सजा और हर मुश्किल के आगे एक ईमान होगा जो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा। तौहीद की अहमियत और हिदायत का मुकाम एक ऐसी अहमियत रखता है जो इंसानियत के हर मुसाफिर के लिए जरूरी है। हर जमाने और हर हुकूमत में जालिम जमींदार और गुलाम इनकलाब की फिराक में होते हैं, लेकिन ईमान और हिदायत का रास्ता उन सब का रोशनी दिखाता है जो अल्लाह के जिक्र में लगे रहते हैं। वाकयात और तालीमात हमारे लिए बढ़कर दुनिया और आखिरत की ओर एक राहनुमाई करते हैं। ऐसे ही एक वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी मिसाल है, जो हर मुसीबत और मुश्किल के आगे एक रोशन हिदायत का पैगाम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिशन तौहीद और इबादत में सबसे बड़ा था। उन्होंने एक खुदा की इबादत की जो सब कुछ करता है और सब कुछ जानता है। हर मुश्किल के वक्त में उनका ईमान मजबूत था और उनका हिदायत का रास्ता सिर्फ अल्लाह के लिए था। उनके जमाने में जालिम हुक्मरानों का दौर था, जहां हर इंसान अपने ईमान को तोड़ने के लिए तैयार है, जिसके पास दुनिया की तबाही के लहरों का तलब है। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र और सबक को रोशन रखा। उन्होंने हर सजा और हर मुश्किलात के सामने अल्लाह का जिक्र किया और हर वाकया उनकी तौहीद को बढ़ाता गया। वाकये का सबक यह है कि जालिम जमींदार ताकत और हुकूमत में हो, उनका जलालत का रास्ता हर वक्त अल्लाह के इरादे और हिदायत के सामने सीमित होता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिशन में ऐसा नहीं था कि उन्होंने सिर्फ तौहीद का पैगाम दिया, बल्कि उन्होंने इसके साथ हिदायत और सब्र की मिसाल भी दी। उनका हर सबक, हर वक्त और हर मुश्किल में एक ऐसा रास्ता दिखाता है जहां तौहीद की रोशनी कभी नहीं बुझती। जब उन्हें आग में डाला गया, उनका ईमान मजबूत था। जब उनका दिल फितनों से ना भरा, तो उनका रास्ता रोशन था। अल्लाह का हिदायत देना अपनी रजा से है। हिदायत के रास्ते में हमेशा मुसीबतें आती हैं और जालिम जमींदार हमेशा अपने कुफर और जुल्म में गुलजार होते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत और उनकी हिदायत उन लोगों के लिए है जो सब्र और इखलास के साथ तौहीद में लगे होते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया आज भी हमारे लिए एक पैगाम है, एक जो हर जमाने के जालिम हुक्मरानों के सामने भी उनका हिदायत का रास्ता रोशन करता है। आज के जमाने में जब हर तरफ फितने और फसाद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात हमेशा अपने ईमान को बढ़ाने और अल्लाह के रास्ते को अपनाने का सबक देंगी। हर वाकया, हर मुश्किलात और हर फितना ईमान और सब्र के जरिए उन लोगों के लिए रोशनी बन सकती है जो अल्लाह के हिदायत का तवक्कुल रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।